کہ کل جمعہ کے پیش نظر آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، جیسا کہ جامعہ نظامیہ کا اور دیگر مدارس کے علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں ظہر کی تو یقیناً اللہ سبحانہ. ناظرین السلام علیکم. IAD ٹوڈے کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ ریاست میں حالات قابو میں ہیں اور پولیس کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. سائبر ٹاور، ہائی ٹیک سٹی، رائے درگم پولیس اسٹیشن اور دوسرے اہم مقامات کا آج دورہ کرنے کے بعد انہوں نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ حالات پوری طرح قابو میں ہیں اور لوگوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس کرونا وائرس جیسے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہیں. ریاستی حکومت نے ضرورت پڑنے پر عوام کو رجوع ہونے کے لیے محکمہ صحت میں ڈائل 104 کی سہولت فراہم کر رہی ہے. انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور صرف ضروری خریدی کے لیے دکانات کو جائیں. عمر رسیدہ افراد کو چاہیے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں اور مکمل آرام کریں. محمود علی نے بلیک مارکیٹرز کو انتباہ دیا ہے اور کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اشیاء مہنگی قیمتوں پر بیچنے پر انہیں PD ایکٹ کے تحت گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. پہنچانا چاہیے اور پوری مکمل طریقے سے سہولت پولیس کی جانب سے پہنچائی جا رہی ہے. خاص طور سے کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں، چاہے وہ ترکاری ہو چاہے کرانے کا سامان ہو، اس کو ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے پولیس سختی سے عمل کر رہی ہے. کوئی بھی کہیں بھی جگہ اگر ریٹ کوئی اضافہ ریٹ میں بیچنا چاہتے ہیں تو اس پہ سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. CM صاحب نے PD ایکٹ بھی ان پر لگانے کی بات کی ہے. تو ہمارے خاص طور سے پولیس ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے ہی تلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ تلنگانہ بننے کے بعد سے کافی انڈیا میں پاپولر ہے سروس کے اندر، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کافی لوگوں کی رکشا کے لیے، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے سابقہ میں بھی ایکٹیو رہا، ابھی بھی بہت ایکٹیو کام کر رہا ہے. اور سیبرآباد کے اندر 37 پولیس اسٹیشن ہے. ہر پولیس اسٹیشن میں مکمل طریقے سے پیٹرولنگ کی جا رہی ہے، ہر چورستے پر لوگوں کو روکا جا رہا ہے. میں تمام عوام سے میڈیا کے ذریعے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ باہر تشریف. حیدرآباد اور سکندرآباد میں کئی دکانات نے اپنے کسٹمرز کے لیے ماسک کو لازمی قرار دیا ہے اور کہا کہ بغیر ماسک پہنے لوگوں کو دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کئی دکانات خاص کر ڈی مارٹ پر ایسے نوٹس چپساں کر دیے گئے ہیں. ماسک کے علاوہ دکانات کا انتظامیہ گاہکوں کو فاصلہ برقرار رکھنے پر بھی زور دے رہا ہے اور اس کے لیے نشانات مقرر کیے ہیں. ڈی مارٹ اپنی دکانات میں بیک وقت 20 سے 30 افراد ہی کو داخلے کی اجازت دے رہا ہے. باہر قطار میں کھڑے لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ 1 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھیں کیونکہ اس وبا پر قابو پانے کا یہی ایک طریقہ ہے. صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ سول سپلائز کارپوریشن M. سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ فی خاندان کو 12 کلو مفت چاول اور 1500 روپے کی رقم دینے کی اسکیم پر عمل کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سرینواس ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے مولانا اسکیم سے 87 لاکھ سفید راشن کارڈ رکھنے والوں کو استفادہ کا موقع ملے گا. چاول تو راشن کی دکان سے ملے گا جبکہ 1500 روپے کی رقم کارڈ گریندوں کے کھاتے میں راست جمع کر دی جائے گی. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ریاست میں چاول کا اسٹاک اس قدر موجود ہے کہ اس اسکیم کے لیے پورا ہو جائے گا. سرینواس ریڈی نے بتایا کہ اشیاء ضروریہ کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی اور دعویٰ کیا کہ ریاست میں چاول، دال، تیل، نمک، حتیٰ کہ ترکاری کا کافی اسٹاک موجود ہے. اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کی تو اسے PD ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے گا. ڈائریکٹر جنرل پولیس کی زیر قیادت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو شہری رسد کی سربراہی کی صورتحال کا وقتاً فوقتاً جائزہ لے رہی ہے. لاک ڈاؤن کے دوران LPG گیس کی قلت نہ ہو اس مسئلے پر بھی بات چیت کی جا چکی ہے. عوامی نظام تقسیم کے تحت ریاست بھر میں چاول کی منتقلی سے متعلق ایک سوال پر صدر نشین سول سپلائز کارپوریشن نے بتایا کہ سول سپلائز کے حکام نے ٹرانسپورٹرز اور حمالوں سے بات چیت کی ہے. ضلع کلکٹروں اور ٹرانسپورٹروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ زمینی سطح پر یہ معمولی باتیں ہیں اور مفت چاول کی فراہمی کی اسکیم پر عمل آوری کو یقینی بنانے ان امور کی یکسوئی کر لی جائے گی. چیف منسٹر نے اب تک 3 مرتبہ سول سپلائز کے حکام کے ساتھ اجلاس منعقد کر چکے ہیں. ریاست اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکراماکا نے ریاست کے ہاسٹلوں میں مقیم طلباء کو کھانے پینے کی تکلیف پر مسرت پیدا کرنے کی اپیل کی. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ریاستی حکومت سے پہلے ہی کہا تھا کہ
वो हॉस्टलों में मुकीम तलबा को खाने पीने की चीजें फराहम करे। हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिससे हजारों तलबा आज परेशान हैं। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने परेशान हाल तलबा से कहा कि वो CLP के दफ्तर या फिर कांग्रेस के अरकान असम्बली से रब्ता करके अपने मसाइल बयान करें तो यकीनन कांग्रेस पार्टी इस मसले को हुकूमत तक ले जाएगी। హైదరాబాద్ నగరంలో నివాసం ఉంటున్నటువంటి అనేక మంది విద్యార్థులు కానీ లేకపోతే రోజువారీ కూలి చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు కానీ నిత్యావసర వస్తువులు దొరక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి విషయం చాలామంది CLP దృష్టికి తీసుకుని వస్తే వారి సమస్యల్ని పరిష్కారం చేయడం కోసం వెంటనే ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుని వచ్చాం. సాధ్యమైనంత మేరకు ఆ హాస్టల్స్లో ఉచితంగా రేషన్ అందించడానికి అట్లాగే ప్రభుత్వ పరంగా ఆయా సెంటర్స్లో ఉచితంగా భోజన వసతులు ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వానికి కోరటమైంది. దానికి సంబంధించి మాట్లాడినటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వం కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఆ నిర్ణయం చేస్తానని చెప్పారు. सदर नशीन रियासती वक्फ मोहम्मद सलीम ने मुखैर हजरात से अपील की कि वो परेशानी और बहरान के दौर में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएँ। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि आइंदा 2 दिन के दौरान वक्फ बोर्ड की जानिब से गरीब मुसलमानों की इमदाद से मुतालिक अहम पैकेज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो भी अपनी तरफ से हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा कि साहिब सरबत लोग अपनी ज़कात की रकम पेशगी अदा कर सकते हैं और इसके अलावा जो कुछ मुमकिन है वो करें। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मुसलमानों से अपील की कि वो कल जुमा की नमाज की बजाय घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा करें। इस मौके पर मक्का मस्जिद के इमाम मौलाना हाफिज उस्मान नक्शबंदी और खतीब हाफिज रिजवान कुरैशी भी मौजूद थे। आज हमारे मक्का मस्जिद के इमाम साहब रिजवान कुरैशी साहब और हमारे उस्मान साहब अलहाज मोहम्मद हाजी उस्मान साहब और ये हमारे मक्का मस्जिद के बहुत मौजिज़ इमाम लोग हैं। ये लोग तो आप लोग बता चुके हैं कि जो हालात है, और दूसरी चीज़ ये है कि जामे अज़हर का भी एक फ़तवा है और जामे निज़ामिया का भी जो उलमा जो फ़तवा दिए जो ऐलान करे हैं, और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी जो ऐलान करे हैं, और मजलिस उलमाए दक्कन भी जो ऐलान करे हैं, और अहले हदीस के जो मस्जिद से भी जो ऐलान करे हैं, ये चीज़ को अपने को फॉलो करते हुए सब मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरे और छोटे भाइयों से, बुज़ुर्गों से मेरी अपील है कि आप लोग इसको फॉलो करिए। जैसा अपने बड़े उलमा मशाखीन वगैरह जो लोग बड़े बड़े इदारों से बोल रहे हैं, जामिया निज़ामिया से, तो इनका एहतराम करते हुए इनके बातों को फॉलो करते हुए अपन चलेंगे तो जो है ना आने वाले टाइम में कोई बीमारी अपने करीब भी नहीं आएंगी और अपन लोग भी सेफ रहेंगे। क्योंकि एक आदमी अगर मस्जिद में आके अगर कोई एक को है तो फिर वो घर में जाके वो पूरों को वबा फैलाने वाला है। तो लिहाजा ये चीज़ को अपन कंट्रोल करने के लिए हमारे CM साहब भी जो है ना ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, तो CM साहब की भी बात को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए इसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि रोड पे ना निकलिए, क्योंकि जुम्मड़ भी ना रखना है, क्योंकि पब्लिक 1 से 8-10 आदमी एक जगह ठहरने से किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या है नहीं मालूम होता हो। तो लिहाजा मेरी अदबन गुजारिश है मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे सरपरस्त आला लोगों से, मेरे सब लोगों से अपील है कि आप लोग घर में रहकर आप लोग इबादत करिए और हमारे उलमा जो बताए मस्जिद के बारे में उसको फॉलो करिए। अपने उलमाए मशाकिन जितने हमारे बड़े लोग बोले जामे निज़ामिया से, जामे अज़हर से, और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मजलिस उलमाए दक्कन और अहले हदीस के जो बड़े बुजुर्ग लोग भी जो बोले हैं, इसको आप लोग फॉलो करें तो आप लोगों की खुद सेहत अच्छी रहेगी, घर वाले भी अच्छे रहेंगे। अपना घर का एक आदमी बीमार होगा तो पूरा ख़ानदान परेशान हो जाता। लिहाजा आप लोग इसको कंट्रोल करिए। गवर्नमेंट जितना कंट्रोल करना है, CM साहब और हमारी गवर्नमेंट पूरी, पुलिस पूरी, हर चीज़ मिशनरी पूरी काम पे लगी हुई है, तो उन लोगों का भी ताउन करिए। और परसों CM साहब खुद बोले कि MLA, MLC और कारपोरेटर ये सब लोग भी जो है ना, पूरे चेयरमैन जो भी है, पुलिस को भी कोऑपरेट करना है और पब्लिक को भी कोऑपरेट करके एक को जिसको नहीं मालूम है, जो इनोसेंट है बेचारे, बाज लोग एकदम आ जाते हैं ऐसा, तो उनको मालूमात नहीं रहते, तो वैसे लोगों को भी अपन थोड़ा काउंसलिंग करके समझाना है। क्योंकि जज्बात में नहीं जाना है।
क्यों मस्जिद बंद कर दिया बोल के लड़ना नहीं है, क्योंकि उलमा जो बोल रहे हैं ये उलमा की बात को मद्देनज़र रखते हुए उलमा की बात को आप लोग एहतराम करिए। लोगों का, उलमा का, हमारे इमाम लोगों का, अपने बड़े मस्जिद के इमाम लोग हैं, छोटी मस्जिद के इमाम हैं, जो भी है, हमारे मुफ्ती, आलिम, फाजिल जो भी लोग हैं, उन लोगों का अपने को एहतराम करना है। उसके साथ अपने माँ बाप का भी एहतराम करते हुए जो है अपने भाइयों का, छोटे बच्चों का अपन ये करते हुए अपन उन लोगों को समझाना है कि डांट के करके, लड़ाई झगड़े से नहीं, मोहब्बत से समझा के उसको काउंसलिंग करके उन लोगों को घर में आप दीनी तालीम दीजिए घर में बैठ के। तो बच्चे भी जो है ना, आज खाली इंग्लिश दीनी तालीम नहीं है लोगों का ने, खाली इंग्लिश की पढ़ी है लोगों का ने, एक कलमा पढ़ना नहीं आता बात जनों को। तो वो जो है ना, आप लोग घर में ये टाइम, ये मौका दिया अल्लाह मियाँ सुधरने का। अगर आप नहीं सुधरे तो फिर कभी भी नहीं सुधर सकते, क्योंकि इतना 3 हफ्ते का टाइम है अपने को। 3 हफ्ते में बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। ये 3 हफ्ते में जो है ना बहुत सी चीज़ें सीख सकते। एक ग्रुप बना, मतलब घर के अंदर ही बीवी बच्चे, अपन मियाँ बीवी सब जो मिलके जो ना दीन के बुक्स निकालिए, एक दूसरे को समझाइए। नहीं आता तो कोई मौलाना को बुला के दूर बिठा के जो ना, ये कोई स्पीकर लगा के ऐसा घर में बयान के हिसाब में जो ना दूर दूर बैठ के जो है ना अपना ये कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक दूसरे को जो है ना मालूमात होते हैं दीन क्या चीज़ है। आज दीन की दूरी से भी जो है ना ये परेशानियां आ रहे हैं अपने को। और नमाज की पाबंदी करिए घरों में। ये नहीं कि वीडियो डाल रहे व्हाट्सएपों पे खाली ठीठा कर लेते बैठे हुए, वैसा नहीं है। नमाज की पाबंदी करिए, तहज्जुद पढ़िए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करिए, तो अल्लाह ताला ये सब दवाओं से बढ़ के दवा, वो एक दवा अपनी है, वो अल्लाह ताला अपने को हर चीज़ को, बीमारी को भी दूर करने वाला अल्लाह ताला। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला चाहे तो 1 सेकंड में ये कोरोना भी बर्खास्त हो जा सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो जो ना, और 1 साल को भी कोई दवा नहीं ला सकते इसके बारे में। तो अल्लाह से दुआ मांगिए, गिड़गिड़ा के मांगिए, बेकार टाइम वेस्ट मत करिए घरों में भी, बेकार फिल्मा मत देखिए, बेकार चीज़ें मत करिए। बच्चों को भी अच्छी तालीम दीजिए। माँ बाप से भी मेरी अपील है, मेरे भाइयों से भी मेरी अपील है कि बच्चों को भी जो है ना दीनी तालीम बताइए, दीन क्या है बताइए बच्चों को। आज दीन की दूरी से भी आज ये अपने को ये वक्त देखना पड़ रहा है। आज अपने को ये आज वक्त देखने की वजह ये है कि आज दीन की दूरी है बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों को। आज दीन इतना इजी है, दीन की तरफ जा रहे नहीं कोई अपने, बहुत कम लोग हैं। आज मस्जिदें खाली रहती है आज, क्योंकि मस्जिदों में जो है ना, आज जैसा मस्जिद को नमाज को आओ बोलते थे, आज अल्लाह मियाँ खुद बोले कि तुम लोग दूर रहो आज, क्योंकि ये अपने इससे बढ़ के और क्या अजाब है अपने लिए। आज हरम में जो है ना तवाफ देखिए, आप तवाफ को छीने से करे, आज उम्रे को जाके आ रहे, फिर वही यहाँ पर जो है ना वही अपना पिक्चर देख रहे, सब ठीक ठाक में रह रहे। उम्रे का एहतराम क्या है वो समझाइए। हज का एहतराम क्या है देखिए आप। अच्छे लोग भी है, आज अच्छे लोग है बोल के अपन आज बैठे हुए अपन, आज दुनिया चल रही है। आज जिस दिन अच्छे लोग भी खत्म हो जाएंगे उस दिन क़यामत आएंगे, और ये क़यामत के निशानियों में से है ये। सरकार की खुद पेशन गोई थी कि जो है आने वाले टाइम में 14वीं सदी के बाद का हाल मैं नहीं बता सकूंगा बोल के, ये आज देखने में मिल रहा अपने को। अल्लाह ताला अभी हमारे इमाम साहब भी दुआ करे, और हमारे दोनों इमाम साहब दुआ करे, हमारे इनकी दुआ को कबूल करे अल्लाह मियाँ जो है। और हमारे मुफ्ती, आलिम, फाजिल जो लोग जो बयान कर रहे हैं, इसका एहतराम करते हुए जो है अपन घरों में रहिए, अपन एहतराम करिए दीन का, और नमाज का जैसा अपने बड़े लोग बताए उसको फॉलो करिए। अपने मुफ्ती, आलिम, फाजिल, जामे निज़ामिया के जो भी हमारे जितने उलमा है वो लोग जो बताए उस तरीके को फॉलो करें, तो अपन घर में भी सुकून से रह सकते, बच्चे भी सुकून से रह सकते। क्योंकि आप जिद करके आके मस्जिद में नहीं पढ़ना है बोल के आएंगे आप, अगर किसी को है तो अपने को तो नहीं मालूम ना, अपनी पिशानी पे लिखे हुआ नहीं है, आगा बोले तो पूरा घर खराब। तो उसलिए उलमा बोलने का मतलब ये है, मेरी एक एडवाइस है, उलमा जो बोल रहे मेरे को भी वही फॉलो करना है। उलमा मशाकिन जो बोल रहे वो चीज़ को मेरे को फॉलो करना है। मैं मेरे तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उलमा का जो बयान देखा इत्तेमाद पेपर में और सियासत में, उसमें जो पेपरों में आया, मैं ये देखकर मैं उनका एहतराम करते हुए जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आज मेरे को कई लोग फ़ोन करके बोले कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप बोलिए क्या है सो। तो फिर मैं बोला मैं नहीं बोल सकता है चीज़, क्योंकि उलमा मशाकिन बोलना है ये। मुफ्ती खलील अहमद साहब से भी बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोले नहीं, हम तो ऐलान कर दिया, आप बोलिए, आप बोल के ये करे। तो हम बोले नहीं, रिजवान कुरैशी साहब को और हमारे उस्मान साहब को बुलाएंगे, मक्का मस्जिद के इमाम साहब लोगों को बोल के मेरे दिमाग में आया, तो उन लोगों से ये करने लगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हाज़िरीन किराम व नाज़रीन किराम, आज
हज हाउस में वक्फ बोर्ड चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया और नमाज जुमा के ताल्लुक़ से जो है सराहत के साथ बयान अखबारात में भी आ रहा है। उलमाए किराम जो है सराहत के साथ ये बयान किए हैं कि नमाज जुमा के लिए एहतियात करिए। इसका मकसद ये नहीं है कि नमाज जुमा मसाजिद में मत पढ़िए, मसाजिद में नमाज जुमा को होने दीजिए। और जो है जैसा कि अभी जो है बोला गया है कि महदूद तादाद में लोग आए और जो है नमाज अदा करें, फिर जो है सुन्नत और नवाफिल जो है अपने घरों में अदा करें। जामिया निज़ामिया में भी जो है मीटिंग हुई, वहाँ से भी जो है साहब बहुत ही जो है सराहत के साथ उलमाए किराम ने पुरखुलूस अपील की है कि आप अपनी सेहत को जो है ख्याल रखते हुए अपनी हिफाजत करिए, ताकि जो है ये मरज़ जो कोरोना वायरस जो इंतहाई जो है जानलेवा साबित हो रहा है और सारी दुनिया इससे परेशान है। और आप देख रहे हैं मस्जिद नबवी में, मक्कतुल मुकर्रमा में, मस्जिद अक्सा में, तमाम जगह पे जो है वायरस की वजह से नमाज़ों को महदूद कर दिया गया है। तो तेलंगाना में जो है तारीख़ी मक्का मस्जिद भी जो है हमारी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ पर भी हमको जो है एहतियात करना चाहिए और तेलंगाना के तमाम मसाजिद में भी नमाज जुम्मे के लिए बिल्कुल ही मुख्तसर ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 आदमी आए, नमाज जुमा अदा कर ले और चले जाएं और बाकी हजरात अपने घरों में नमाज पढ़ ले। अल्लाह ताला दिलों के जानने वाले है। नमाज जुमे की अहमियत फ़ज़ाइल जो है तमाम चीज़ें उलमा बताए हैं, लेकिन जब कोई ऐसी आफत आती है तो उससे एहतियात भी करना चाहिए। देखिए कलामुल्लाह में परवरदिगार आलम ने फरमाया ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपनी जान को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। तो हमको जो है नुकसान में पड़ के, ज़रर में पड़ के जो है क्या है नहीं नमाज गुजारें, वैसा जो है हरगिज़ इस्लाम इजाज़त नहीं देता। शरीअत में जो है हर चीज़ की आसानी है। तो अल्लाह ताला जो है ये वबा को सारी जो है दुनिया से जड़पेट से ख़त्म कर दे और जो है हमारे तेलंगाना को जो है और यहाँ के अवाम को अल्लाह हर मुसीबत से महफूज रखे। और तमाम जो है हाजिरीन जितने यहाँ जमा हैं, ये तमाम जो है कौम की खिदमत के लिए घरों से निकल के वायरस की परवाह किए बग़ैर जो है ये हजरात जो है फिर के जो है अपने जो है चैनल के ज़रिए से हमको जो है बता रहे हैं कि हैदराबाद में ये हो रहा, तेलंगाना में ये हो रहा, दुनिया में ये हो रहा। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन तमाम के जानो माल की हिफाजत करे। अल्लाह तमाम इंसानों पर रब्बुल आलमीन हैं आप, तमाम आलम के इंसानों पर आप रहम फरमाइए, करम फरमाइए, फजल फरमाइए। अल्लाह ये मरज़ को जड़ पेट से जल्द ख़त्म कर दीजिए। पाक परवरदिगार आप 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। आप गुनाहगार बंदों के गुनाहों को मत देखिए, बल्कि अपने हबीब पाक के उम्मती हैं उनको देखिए। अभी अपने हबीब पाक के सत्ते और तुफैल में इस बला को जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह दुआओं के सुनने वाले, हम गुनाहगार हाथ उठाए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं। मौला हमारी दुआ को कबूल फरमा और जल्द से जल्द हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में अमन व अमान अता फरमा, इस बीमारी से नजात दिला। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। तेलंगाना में मुक़िम सैकड़ों आंध्राई बाशिंदों को जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा खुसूसी पासेस लेकर अपने अपने आबाई मकाम के लिए रवाना हुए थे, उन्हें आंध्र प्रदेश की पुलिस ने अपनी सरहद पर दाखिल होने से रोक दिया। उनमें ऐसे नौजवानों की काबिल लिहाज तादाद थी जो हुसूल तालीम और रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ती इलाकों में हॉस्टलों में मुक़ीम थे। ज़िले गुंटूर की सरहद पर वाक़ डिचपल्ली मंडल में पुलिस ने सैकड़ों नौजवानों को जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से था रियासत में दाखिला देने से इनकार कर दिया और इन्हें वापस हैदराबाद जाने को कहा। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ सैकड़ों तलबा ने वहीं सड़क पर धरना मुनज़्ज़म कर दिया और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगाने लगे। वो चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी डाउन डाउन के नारे लगाने लगे। इन तलबा का कहना था कि कोविड-19 की विबा के आम हो जाने के चलते
जल्द से जल्द वो अपने अपने आबाई मुकाम को पहुंचना चाहते हैं और बहरान की इस घड़ी में वो अपने अरकान खानदान के साथ रहना चाहते हैं। मुल्क भर में 21 दिन के मौलाना लॉकडाउन के नतीजे में लोग जो जहां हैं वहीं रुके हुए हैं। देही इलाकों से नकल मकान करके शहरों को मुंतकिल होने वालों का एक सिलसिला चल पड़ा है। कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर में जहां 21 दिन का लॉकडाउन जारी है, वहीं हर तरफ लोग परेशान हैं। ऐसे में कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की तरफ से हल्के के सलाम बस्तियों और गरीब बस्तियों में लोगों को ग़िज़ाई अजनास के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में कई वर्कर्स ये पैकेट तैयार करने में मसरूफ हैं, जो चावल, गेहूं का आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च और हल्दी जैसी अशिया पर मुश्तमिल है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मक्का मस्जिद के इमाम और खतीब हाफिज रिजवान कुरैशी ने मुसलमानों से अपील की कि वो कल जुम्मे के मौके पर नमाज ज़ोहरी अदा करें। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बड़े बड़े इज्तिमात में शिरकत से गुरेज करना जरूरी है, चुनांचे जुम्मे के इज्तिमात से भी गुरेज किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में कई शरई हवाले भी दिए और कहा कि घरों में नमाज फर्ज अदा करने वालों को मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम व सामीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सारी दुनिया में कोरोना वायरस के नाम से जो मर्ज फैला हुआ है, सारी इंसानियत इससे मुतासिर है और सारे लोग इससे परेशान हैं और हम सबको इससे एहतियात करना है। इसी सिलसिले में हम आपके सामने आज मौजूद हैं। नमाज़ों के मुताल्लिक़ आपको एक अहम हम बात बताना चाह रहे हैं कि इज्तिमाअत से हमको एहतराज़ करना चाहिए और रुके रहना चाहिए। चूँकि कल जुमा है, इसी के पेश नज़र लोगों के जहनों में एक कॉन्सेप्ट है कि जुमा के लिए कम से कम मस्जिद को आने का इजाज़त दी जाए, परमिशन दी जाए। तो मैं नाज़रीन और सामाईन आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि ये जो वबा फैल रही है, इसका सबब है इज्तिमाइयत। हम सब जमा हो रहे हैं, हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, इसके वबा फैलने का यही खदशा है ज़्यादा। इससे हमको एहतराज़ करना चाहिए। मैं तमाम मुसल्लियों से और तमाम कमेटी के ज़िम्मेदारों से और तमाम मुसलमानों से अदबन ख्वाहिश करता हूँ कि कल जुमा के पेश नज़र आप हज़रात अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें। जैसा कि जामिया निज़ामिया का और दीगर मदारिस के उलमाए किराम का फतवा ये है कि अगर आप अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि आपको बिल्कुल जमात का सवाब मिलेगा। ये अहादीस की रोशनी में और शरीयत की रोशनी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल एहतियात का मामला है। कल जुमा के पेश नज़र बड़ी बड़ी मसाजिद है या छोटी मसाजिद हो, आप हजरात बिल्कुल अपनी इज्तिमाइयत को महदूद कर दें। 4-5 लोग इमाम साहब है, मौज़िन साहब है, कमेटी के लोग हैं, 4-5 लोग, 6 लोग, 8 लोग से बढ़ के अगर आप इज्तिमाइयत अपनी बढ़ाएंगे तो ये नुकसानदेह साबित होगी। खुसूसन बड़े बड़े मसाजिद जो हैं वो वहाँ के मैं इंतज़ामियात से मैं खुद खुलूस गुजारिश करता हूँ कि पब्लिक को बिल्कुल रोक दें और पब्लिक को भी चाहिए कि मस्जिद में आने से एहतराज़ कर लें, अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें। आप लोग अहादीस की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि अगर आप अपने घर में ज़ोहर की नमाज अदा कर लेते हैं तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको
जमात के साथ जुमा की नमाज अदा करने का यकीनन आपको सवाब अता फरमाएगा। मैं आपसे पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ, आप हजरात से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात कल जुमा के मौके पर अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा कर लें और अपने अपने मसाजिद को आने की जहमत न करें, मुख्तसर सी पब्लिक को महदूद कर दें, यही हमारे लिए बेहतर होगा और दीगर लोगों को हम पर एतराज़ करने का भी मौका न मिलेगा और हम पर उंगलियां भी न उठेंगी। और इसी के साथ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वबा को जल्द अज जल्द इस दुनिया से खातिमा फरमा दे। आमीन। और हम सबको, तमाम मुसलमानों को, तमाम आमीन। इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बीमारी से महफूज रखे और हम आमीन। सबकी हिफाजत करे। आमीन। और हम तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला इस वबा से महफूज रखकर हम आमीन। सबकी उम्र दराज करे और आमीन। हम सबकी तमाम बीमारियों से हिफाजत करे। सल्लल्लाहु आमीन। तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुत्तापेट की मशहूर फ्रूट मार्केट में काम करने वाले बैरूनी वर्करों ने अपने अपने आबाई शहरों को वापसी के इंतजाम का मुतालबा किया और अपने मुतालबे पर जोर देने के लिए ज़बरदस्त मुजाहरा भी किया। इनमें बेशतर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के शहर इटावा और आगरा वगैरह से है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से शहर की सबसे बड़ी मार्केट बंद पड़ी हुई है और उन्हें कामकाज भी मैसर नहीं है। परेशानी के सालन में वो मजीद हैदराबाद में रहना नहीं चाहते, बल्कि वो अपना वक्त अपने अरकान खानदान के साथ गुजारना चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम ठप होकर रह गया है, जिसकी वजह से उनके पास कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो उन्हें अपने अपने आबाई मुकाम को जाने का इंतज़ाम करे। एक नौजवान ने कहा कि वो 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। एक और वर्कर ने बताया कि उन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। फ्रूट मार्केट के मंडेदार भी लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में ही बंद पड़े हुए हैं। मुझे अभी घर पे जाना है, खाना नहीं मिला यार 3 दिन से। 2 दिन में 4 तो मैं आगरा इलाका हूँ, इटावा का सर। हम लोगों को 18-19 लोगों को बुलाया गया है सर। 6-7 दिन से बुला लिया गया है। हम घर जाने की बोल रहे हैं सर, काम नहीं चल रहा है। तो मतलब घर नहीं जाने बोला है, तो कह रहा है 14-15 तारीख तक रुको सर, और रुपये भी नहीं दे रहा है, नहीं प्रवेश बनवा रहा है। जैसे जाने का प्रवेश हम ही नहीं बनवा रहा है, ये बोल रहा है चले जाओ। और खाने के लिए भी नहीं मिला 6-7 दिन के सर। कुछ सब लोग भूखे हैं, हमारे साथ के लड़के भी भूखे हैं सारे सर। बस हम लोगों को घर जाना है सर, हमको प्रवेशन चाहिए बस सर। बोलो। मेरा नाम अनुज है, मैं इटावा का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, बोला काम चल रहा है बहुत जगह से। यहाँ पे आया मैं, मुझे बोला जो बच्चे 2 दिन बाद चलेगा। मैं ठीक है सर, मैं रुक रहा हूँ। उसके बाद बोला 3 दिन रुको। मैंने बोला मैं खाने के लिए मुझे दो, कुछ खाएंगे। तो वो भी बोला कभी रुको, चावल भेज दिए। मुझे 2 दिन के लिए चावल खाया। उसके बाद मेरे पास खाना नहीं आया मुझे खाने के लिए। सभी 19 बंदे हैं मेरे, सब भूखे बैठे हैं। दोनों रियासतों के बल्खी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और बकायाजात के अदायगी के लिए हाईकोर्ट ने जस्टिस DM धर्मा अधिकारी के ज़रिए क़यादत एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। जेंको, ट्रांसको और डिस्कॉम को एक मकतूब रवाना करते हुए साबिक़ सुप्रीम कोर्ट जज ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से यह फैसला लिया गया है। कमेटी ने आंध्र प्रदेश के 655 और तेलंगाना के 584 मुलाजिमीन को जो बर्क़ी के शोबेजात में काम शुरू करने के मुंतज़िर हैं 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर तनख्वाह देने की हिदायत दी है। जुबली हिल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात गैस सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में मुहिम आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक महेश नामी शख्स के मकान में सिलेंडर फट पड़ा। वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के मुताबिक गैस सिलेंडर बंद करने में लापरवाही के नतीजे में हादसा पेश आया है। घर का सारा सामान जलकर खाकसतर हो गया। आग इस कदर भयानक थी कि शोले दूर दूर तक नजर आने लगे। गैस सिलेंडर के धमाके की आवाज सुनकर लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल पड़े। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना किसी बड़े जानी नुकसान का अंदेशा था। पुलिस की जानिब से फायर इंजनों को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। 9 o'clock 9 గంటలకు రాత్రి
ఈ జవహర్ నగరంలోని మల్లేష్ అనే వాళ్ళ ఇంట్లో 3rd ఫ్లోర్లో ఉన్న ఒక టెంపరీ స్ట్రక్చర్, ఒక హట్లో సిలిండర్ వెళ్ళడం వల్ల పెద్ద విస్ఫోటమై ఒక అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అంతా కూడా ఆ సిలిండర్ పేలడం వల్ల జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఓనర్ కానీ ఆ తర్వాత అందులో నివసించే వ్యక్తులు కానీ దాన్ని వదిలిపెట్టి గ్యాస్ను వదిలిపెట్టి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల జరిగిందేమో అని ఎంక్వైరీ చేసి ఇప్పుడు ఒక కేసు దర్యాప్తు చేసి దాని మీద తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. లైఫ్ ఇంజరీస్ ఎవరు కూడా ఇంజరీస్ అయినట్టు లేదు. ప్రాపర్టీ లాస్ ప్రాపర్టీ లాస్ ఎస్టిమేట్ కన్నా చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है. आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं. ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद.